टेलीविज़न से अग्नि मिरजकर बात कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ पूर्व ओशो आश्रम के बुद्धा हॉल कोऑर्डिनेटर जो रह चुके हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है आश्रम के अंदर, स्वामी अनुग्रह। स्वामी जी, I would like to interview you regarding Osho, and would you like to share something wonderful about Osho and your days that you spend inside the ashram? Yes, I still feel those vibes sitting just outside Osho Ashram, and just this wall is stopping us from getting inside. Actually, the trustees are the one who are stopping us from getting inside. So I could feel the vibes of people over there, who had loved Osho, who understood meditation, who were in celebration. We used to see them and share those energies and live life like that. That was a great experience, beautiful experience. And I feel very hurt to see the state of Osho commune right now, which has turned into just a plain resort. Although they have meditation hall over there, and they have banned so many people, they have brought so many restrictions. It's time for a change, Agnima. It's time for a change. So what change do you want? I mean, because as you have seen the real life inside it, and how do you feel when you just said ki I'm sitting outside, only the wall is stopping us, and what is the reason behind this? These people who are managing the commune have put this wall, na? It's not the wall, physical wall. It's these people over here who are managing, who are supposed to manage, to run, not to become an owner of this commune. They looks like they have become the owner and monopoly is going on. They do not understand bhakti. They do not understand devotion. They do not understand bhavana. What do you call? They feel it is stupid to have photograph of Osho. They feel it is stupid to bow down to Osho. Why not? Why not? Because Osho was multidimensional. He had even Zen, he had even meditation from Buddha and Mahavira, but he had also Mira, Kabir, Dadu, Nanak, Farid. So everybody is different. Everybody is on a different journey. This is a multi-dimensional journey. So how can they stop people who are bhavana oriented, who are bhakti oriented, devotion? How can they stop those people from living the way they want to live? They can wear mala outside or inside, it doesn't matter. Who are they to stop us? Who are they to stop us from going to Osho Samadhi? Nowhere in India एक संत की समाधि पे जाने के लिए किसी को रोक नहीं होता है. पैसे नहीं भरना पड़ता संत की समाधि जाने के लिए. क्यों यहाँ पे ऐसा है? हम हमारे घर में नहीं जा सकते हैं, मतलब फ्रीडम से. मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन जो देख रहा हूँ मैं. और कहाँ लोग हैं? पहले भरा हुआ रहता था यहाँ से. अब मेरे आसपास से कोई गुजरता भी दिखता नहीं है आप लोगों को. तो मरून रोब से भरा हुआ रहता था. कहाँ गए वो लोग? फिर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? और आश्रम को बेचना है उस लॉस के लिए उनको. समाधि भूमि, समाधि के पास जो पूरा क्षेत्र है बाशो, उसको अगर बेचना है, मतलब क्या है? पूरा कम्यून को बेच के निकल जाना है क्या इन लोगों को? हमको दे दो, हम देख लेंगे. ट्रस्टीज चेंज करो. टाइम हो गया, अभी बहुत हो गया. हम लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे. हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएंगे हम. और हमने ये भी सुना है कि समाधि जो कि ओशो की है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ ओशो की समाधि है ही नहीं. हाँ, बस तभी तो बेच पाएंगे ना. समाधि अगर रहा तो बेचेंगे कैसे? तो नकारेंगे, बिल्कुल नकारेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि यहाँ क्लेम किया जा रहा है कि ओशो की समाधि है ही नहीं, और जबकि हमारे हिंदुस्तान के सारे सन्यासी यहाँ आए हैं ओशो के समाधि पे, और ओशो की समाधि के लिए 975 रुपीज़ लिया जाता है. हम विदाउट पैसे दिए अंदर दर्शन भी नहीं कर सकते, जबकि पूरे इंडिया. इतना ही नहीं, जो पुराना बुद्धा हॉल था, जिस जगह पे ओशो आके बैठा करते थे, वो कितनी पवित्र जगह है भाई. उसकी महत्वता कहाँ रही? जूते चप्पल रखने लग गए हैं, वो पूरा सड़ने लगा है, कोई केयर नहीं है. मैं बुद्धा हॉल का कोऑर्डिनेटर था, हमको मालूम है कितना प्रेम से, कितना ध्यान से हम उस जगह को क्लीन करते थे. सॉक्स पहन के जाते थे वहाँ हम. समझ रहे हो बात को? और एक स्पेशल सोप होता था और पूरा उसको उस ढंग से उसको साफ़ करते थे हम. और बहुत ही मतलब सैक्रेड जगह था. तो कुछ लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ी. अंतर की यात्रा जो बोलते हैं कि बाहर क्या है इतना देखना आपको, तो यही आना इनकी मंशा.
तो इनको ये नहीं समझ है, बाहर से ही अंदर सब जुड़ा हुआ है। बाहर से हम अगर कुछ भावना दिखा रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, उसकी कदर उनको नहीं है। कुछ लोगों को तो है ना, सन्यासी है ना, हर सन्यासी अलग है। ये क्यों अकल नहीं आ रही है इन लोगों को? क्योंकि अधूरे हैं, समझ ही नहीं है ना। अकल तब आएगी ना जब ओशो के लिए आए हो लोग। शायद ये लोग ओशो के लिए नहीं आए यहाँ पे, नहीं तो ओशो के लिए जो आते हैं वो समझ होती है उनको। ये ओशो के लिए नहीं है। और ये आश्रम में ओशो के विरुद्ध लोग खड़े हैं। ओशो को ही बैन कर रखा है। मुझे बैन करे या संगीता माँ को बैन करे या अन्य को बैन करे, ये ओशो को ही बैन करना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओशो को ही उनके आश्रम से बैन कर दिया गया है, तो सन्यासी तो दूर के रहे ना। तो ये मसला कैसे हल हो सकता है? पर हंसी खुशी से हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे, जग को बताएंगे, पूरे भारत भर के सन्यासी को बताएंगे कि क्या हो रहा है। और हमसे लोग जुड़ेंगे, बहुत जुड़ रहे हैं ऑलरेडी। काफ़ी पूरे भारत में आग फैलने लग गई है अब तो अग्नि माँ, आपके जैसे ही अग्नि माँ ना आपका नाम, बस फिर तेज़ हो रहा है ये मुहिम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अनुग्रह स्वामी जी। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं जो आपको ओशो में आने के बाद कुछ अनुभव जो आपके हुए होंगे बड़े प्यारे, जिनसे कि आपको लगा होगा कि कुछ ये मेरा बदल गया जीवन का। एक हो तो बताऊं, मतलब इतने डायमेंशन में अनुभव हम देखते हैं हर रोज़ ब्यूटी को मतलब महसूस करते हैं, अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्यून में नहीं गए तो हम महसूस नहीं करते हैं। लेकिन कम्यून एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेंटर था जहाँ मतलब बहुत कुछ होता था और बहुत लोग एनरिच होते थे। आज उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कुछ ही लोगों के लिए। ये शायद चाहते हैं सिर्फ विदेशी आए, मतलब भारतीय का कोई मान ही नहीं है। ब्लडी इंडियंस बोलते हैं हमको, इनकी ये हिम्मत। हम ब्लडी इंडियंस कैसे ब्लडी इंडियंस हो गए? ओशो इंडियन ही थे ना, कहाँ के, विदेश के थे? ओशो तो पूरे विश्व के थे, लेकिन भारत से ही उत्पन्न ही है ना। तो ये ब्लडी इंडियंस नहीं चलेगा अब, ब्यूटीफुल इंडियंस। Yes. So my dear audience, as you're watching this, that ki what foreigners call us inside the ashram is bloody Indians. Are we really bloody Indians, or we are the most wonderful Indians of this world who have given them space to stay with us? Of course, Indians मेहमान नवाजी। बिल्कुल, मेहमान नवाजी क्या बोलते हैं वो हमको मालूम है ना। ये हमको सिखाएंगे? बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ, क्या करें माँ, हमें बेवकूफ़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि you all can see that Swami Anugrah has given such a wonderful time, and मैं BJN टेलीविज़न से अनुग्रह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें समय निकाल के अपने अनुभव के बारे में बताया। Anything else you want to say? Some few words more? Well, हम लोग तो शामिल है ही इस प्रोटेस्ट में। मैं तो चाहता हूँ और लोग आएँ, आगे बढ़े, हिम्मत करें। बैन होने का डर ना रखें कोई भी कि भाई हम बैन हो जाएंगे, फिर हम तो ओशो कम्यून के लिए यहाँ पूना आए थे और हमें अंदर ही जाने ना मिला क्योंकि हम विद्रोह में शामिल हो गए। प्रेम पूर्वक कार्निवल विद्रोह है ना, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, सबको हिम्मत करना है क्योंकि ओशो का संदेश है ये। हमने ओशो को सिर्फ सुना और जीवन में ना अपनाया तो क्या अर्थ है ना माँ? यस, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपनाने वाले में से हैं। आप क्या, मैं क्या, संगीता माँ क्या, सारे लोग, मधु माँ क्या, सारे लोग। We are the new men. Yes, we are the new generation. That Osho, no, we are the new men Osho dreamt of. Yes. You know? Yeah, actually, this is Yes. what he used to say. Yes. New man, new Yes, woman, yes, right? Yes. Yeah. New man in the sense man, woman. You know, it includes both. जी। Yes. Yes. थैंक यू सो मच अनुग्रह जी, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो अंदाज़ा लगा सकती है कि पूना के अंदर रहने वाले लोगों को पता भी नहीं है कि आश्रम के अंदर क्या चल रहा है और हर सन्यासी का क्या दुख है। जी, कई लोगों को नहीं मालूम क्योंकि ना ये षड्यंत्र ऐसा रचा गया, एक करके धीरे लोगों को दूर करते गए। मतलब मैं धीरे धीरे फ़ोटो हटाने लग गए हैं, धीरे धीरे समाधि के ऊपर काला कपड़ा जो आसपास के जो ओशो के पिता माता
सीता माँ, विमल कीर्ति, तो इन सभी के समाधियों पे भी काला कपड़ा जो डालना है, मतलब ये सब क्या दिखाता है? क्या क्या ये क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? कि हम लोग बेवकूफ़ है, वो होशियार हैं ये? अरे नहीं, प्रेम को तो समझो, प्रेम ही नहीं समझें होशियारी का क्या करेंगे? थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन दिया है आश्रम के बारे में। सो और कुछ है बाकी बता दो आज। मतलब और कुछ खास तो नहीं बोलना चाहता मैं, बस मैं चाहता हूँ कि ये जो रेवोल्यूशन, रिबेलियसनेस जो हो रहा है उसमें शामिल हो। मैं तो चाहता हूँ कि हिम्मत वाले लोग इसमें शामिल हो, हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच अनुग्रह जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता देख रही है, आपने एक एक शब्द जो इतने प्यारे बोले हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम BJN टेलीविजन। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम। ओशो। You are watching BJN TV. Don't forget to like, comment, share and subscribe.